Good evening, friends. Once again, welcome you all to my Let's Talk show. Ladies and gentlemen, good evening. Once again, today we are going to join one of the social activists and social worker who has worked very hard during COVID-19 pandemic and is a good human being as well, Mr. ارشاد احمد. تو تھوڑی دیر تک ارشاد احمد ہمارے یہاں پہ لائیو آ جائیں گے، تو آپ کی ملاقات ان کے ساتھ کروا دیتے ہیں. مسٹر ارشاد احمد جی، اگر آپ مجھے واچ کر رہے ہیں، kindly write a message on my wall so that I can connect you. Yes, I have got a message from Irshad Ahmed. Irshad sahab, very warm welcome to my Creator TV channel. آپ کا خیر مقدم ہے میرے چینل پہ ارشاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. ہلو ہلو. ہاں بولے. السلام علیکم. آپ کا وعلیکم السلام. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل جو کریٹر ٹی وی گلوبل ہے اس پہ. ہاں جی بولے. آئی ایم گیٹنگ یو. ارشاد صاحب بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ فائن. آپ اپنے سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کا مان لو جو اپنا سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز آپ نے کری ہے ڈیورنگ کووڈ-19 اینڈ یو گاٹ ریوارڈڈ. آپ کو سرٹیفکیٹس ملے ہیں، ایوارڈ ملے ہیں بہت ساری ایجنسیز کی طرف سے. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سا سرٹیفکیٹ ملا آپ کو جو سوشل ورک کا. تو اس کے بعد اور بھی ڈسکشنز ہوں گی. پہلے آپ سوشل ایکٹیویٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمارے ویورز کو. اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج پھر ایک بار کہ اپنے چینل پہ آنے کا. تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں تو اس چیز کو لے کر. اور دوسرا میں ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے پیار دیا، محبت دی ہے. تو میں ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. تو جو میں نے یہ سرٹیفکیٹ جو حاصل کی ہے، تو ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے جو کام جو میرا تھا تو میں اس کو باسط لوگوں کے یا فوٹوگرافری یا باقی دوسرے چیزوں سے ان کو سامنے نہیں لانا چاہتا، کیونکہ یہ ہمارا سیکرٹ ہوتا ہے اللہ کے. اور اللہ نے بھی فرمایا ہے اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہو، اگر آپ کسی کو کوئی چیز جو ضرورت مند ہو تو اس کو اگر آپ کوئی چیز دیتے ہو تو ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. بالکل رب کا کہنا ہے، یہ ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میسج ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے کسی کو دیتے ہو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. سو دیٹ کہ اس وجہ سے میں تھوڑا اس میں وائرل نہیں ہوا. تو اس چیز کو لے کر کہ سیکرٹی میں چلا کے، اور کتنے لوگ کس طرح سے یہاں کے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو. تو بہت بڑا یہ بیان کرنا بہت بڑا مشکل ہے سر. تو اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ کووڈ-19 میں جو ہم نے جو کام کیا ہے، جہاں مطلب جن گھروں میں ہم گئے یا جن سے ہمارا وابستہ ہوا، تو وہاں ہمیں بہت فیل محسوس ہوتا ہے کیونکہ مختلف اینڈوں سے لوگ پریشان ہیں. کوئی ایک کام سے، کوئی دوسرے کام سے، کوئی تیسرے کام سے. تو شکر اللہ کا کہ جہاں تک ہمیں ہو سکا، جہاں تک ہماری یہ پہنچ تھی، اور اللہ نے ہمیں اس میں بہت ہمت دی. اور اللہ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو اس چیز کے لیے سلیکٹ کیا
یہ سب یہ اللہ اللہ کی تعالیٰ کیا نے کرا ہے. آپ کو دیکھو، یہ سوشل ورک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود چنے ہوتے ہیں انسان. جی تو یہ اوپر والے نے خود چنا ہوتا ہے جو سوشل ورک کرنے والا ہوتا ہے کہ اسی کو سوشل ورک کرنا ہے. تو باقی آپ نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے ڈورنگ کووڈ پینڈیمک، اور آپ کے سرٹیفکیٹس بھی میں نے دیکھے جو آپ کو ملے تھے کسی ڈیو ٹو نیٹ ورک کنیکٹیوٹی. آئی تھنک وی ہیو لاسٹ کنیکشن. I'm gonna to again connect this guy. Just hold on a second. Irshad Saab, if you are getting me, kindly either send a message or send a request. ہاں میں یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود چنا ہوتا ہے جو یہ خدمت خلق لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جو ہوتا ہے، تو اس کو اوپر والے نے اوپر سے ہی چنا ہوتا ہے. اچھا یہ رہی سوشل ورک کی بات. اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے اسکولز بند ہیں، اور مان لو ابھی دوبارہ سے کووڈ بھی آ رہا ہے، اور دوبارہ سے لاک ڈاؤنس کے بھی رسک ہیں کہ پتہ نہیں لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کووڈ کا سرج زیادہ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بولنا بھول گیا، ایکچولی ارشاد احمد وانی صاحب آج جڑے ہیں کپوارہ سری نگر سے، اور یہ کپوارہ سری نگر سے لائیو ہیں میرے ساتھ اس ٹائم اس شو میں. تو انہوں نے ڈورنگ کووڈ-19 جو لاسٹ ایئر گزرا، اس میں انہوں نے خطاب حاصل کیے، سرٹیفکیٹس حاصل کیے، بہت سارے ایوارڈس ان کو ملے ہیں. تو کنیکٹیوٹی ہیز کاسڈ ڈسٹرپشن. ارشاد صاحب کنیکٹیوٹی کا کوئی پرابلم ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. Kindly send request either a message or a request. Again, تو ان کے بارے میں یہی بتاؤں کہ یہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہیلپ کری ہے ان دنوں سارے لوگوں کے اندر گیپ تھے، اور یہ پوچھیں گے کہ کہاں ان کو وہ ہے. السلام سوری گور صاحب. ہلو جی 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 بولے. سوری جناب، یہ نیٹ ورک کی پرابلم تھی یہاں پہ، اور اس وجہ سے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ اس کے بعد جو پہلا یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو کون کون سے ادارے نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اس کا کووڈ-19 کا جو آپ کو اپریسیشن ملا ہے. بہت سارے اینڈ پہ مجھے جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو اپریسیشن ملا ہے، اور بہت جگہوں پہ جانے کا موقع ملا ہے. تو اس میں ایک اچھی ایکسپیرئنس رہتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب انسان مل جاتا ہے تو اس کو ایک خدمت خلقلہ کہتے ہیں. تو اپریشیشن اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. جب انسان کسی ماں کی دعائیں لیں، کسی بے سہارا کا جب اس کی دعائیں ہو، تو اور کہیں اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس سے ہاتھ ملانا ایک سکون، دلی سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے. یس، ان گھروں میں جاتا تھا جہاں پہ بیچاروں کو ایک ہی ڈوکے میں رہ کے، پھر ایک کمرے میں سب بچے بوڑھے چھوٹے، اور ان کے سب بیٹھنے میں بہت ہی الگ مزہ آتا ہے. تو یہ بہت بڑی اپریسیشن ہے. اس کے بعد جو مجھے سرٹیفکیٹس ملے ہیں آل انڈیا لیول پہ، مجھے ایک سرٹیفکیٹ آئی گئی ہے، تو پریس کلب آف انڈیا سے آئی ہے، انسائڈ کشمیر کی طرف سے آئی ہے. تو اس طرح سے
पिछले पीछे भी और बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स वो मिलती रही है और मिलेंगी भी इंशाल्लाह आगे से भी। लेकिन बड़ा यह है कि अप्रिशिएट जो करने वाला है, वो जो बेचारे वो निहत्ते और बेचारे कमजोर लोग, उनकी दुआएं बहुत है मेरे लिए। जी नहीं नहीं, जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस, आई एम गेटिंग यू, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ओके अब स्कूल्स जी की सर। बात हो जाए कि स्कूल्स को आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 स्कूल्स बंद ही हैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी हेलो। जी। हाँ, तो हाँ उसके हाँ, बाद के हालात कैसे रहे वहाँ? देखिए एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जब यहाँ पे ये आर्टिकल 370 और उस 35A जो एब्रिगेट हुआ यहाँ से, जब ये इस गुलपोश वादी जो हमारे बेनजीर कश्मीर कहा जाता है, जो हसीन वादी है, जब यहाँ से ये मामला आ गया, जब 5 अगस्त को जब ये हुआ हमारे साथ, तो उस वक्त से तो फिर उसके बाद हम अपने घरों में ही सहम कर रह गए और हड़तालें हुई। उसके बाद लोग घरों से बाहर न निकल चल पाए। तो उस तरह से हमारे जो फ्यूचर था, जो खासकर वो हमारे बच्चे, जिन पे बहुत बड़ा असर हुआ इस हड़तालों की वजह से। और उसके साथ साथ तो उसमें जब थोड़ा बहुत सर्वाइव किया लोगों को, क्योंकि पैसे भी नहीं थे लोगों के पास, कोई सुविधा नहीं थी, इंटरनेट सिस्टम नहीं था, टीवी का बाकी जो भी है, तो वट एवर, सो मतलब सारा कुछ सिस्टम ठप हो चुका था यहाँ पे। तो उसके बाद जब हम उस परेशानियों से जब हम थोड़ा थोड़ा निकलने लगे, थोड़ा थोड़ा सर्वाइव करने लगे, तो उसके बाद क्या है कि कोविड-19 आ गया, जो वर्ल्ड वाइड बीमारी आ गई। तो पूरा आलम इसमें उसकी लपेट में आ चुका है। तो उसमें हमारा जो बचा, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो फ्यूचर था, तो उनको बेचारों को फिर उसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी कि आप कुल मिलाकर मानिए कि 1 साल तक हमारे बच्चों ने स्कूल का गेट भी नहीं देखा है, और कोई मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या ट्यूशन सेंटर्स है, उन तक भी वो नहीं पहुंच पाए। और एक घर क्या दूसरे घर जाने को तैयार नहीं था। एक बंदा अपने ही घर का अगर सदस्य हो, जैसे कोई बड़ा भाई से नहीं मिल पाता था, कि ये कोविड की जो हमारी क्या कहते हैं इसको, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बीमारी कुछ ऐसी थी, ये एक दूसरे के साथ मिला भी नहीं देती थी। तो उस वजह से हमारे बच्चों में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। और अब ठीक आ गया, अब फिर से लोगों ने सर्वाइव करना शुरू किया, गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से भी, यहाँ लोगों की ओर से भी। अब थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होने लगा था। अब यह है कि दोबारा अब ये आप देख रहे हो पिछले कई दिनों से, लास्ट जो पिछला हफ्ता है, इसमें कुछ ज्यादा ही केस आए हैं, करीब ये 60,000 से 70,000 केस परसों के डेट में आए हैं। तो इस वजह से ये अब बढ़ता गया है, और बहुत स्टेट्स में भी अब लॉकडाउन शुरू हो चुका है। और शायद यहाँ का भी ये सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन हो, और अभी इन्होंने हर जिले सतह के और प्रिकॉशंस भी जारी किए हैं, कि मतलब जैसे लॉकडाउन की जो प्रिकॉशंस हैं, इसमें क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मास्क लगाना, बाकी चीजें। अब दूसरी धीरे धीरे वो चीजें फिर से आने लगी हैं, जिन चीजों से इंसान को वो डर था। अब यह है कि हाँ ठीक है, ये बात अच्छी बात है कि अगर सेहत बचे तो फिर इंशाल्लाह आगे भी इंसान कुछ कर सकता है। जब सेहत ना रही तो फिर क्या कर पाएगा। तो अब शायद हमारी बदकिस्मती है कि हाँ, बोले जी सर। कैरी ऑन। तो मैं इस कह वजह रहा था से कि हेल्थ एंड हाइजीन का हमें ऐसे भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे अगर मास्क पहनना है तो मास्क तो पहनना चाहिए। वो तो जैसे मैं कई जगह देख रहा हूँ कि लोग इग्नोर कर लेते हैं, तभी गवर्नमेंट को इतना हार्ड स्टेप लेना पड़ा कि उस पर फाइन स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज अगर लोग होशियार होते, मतलब हेल्थ कॉन्शियस होते, तो वो मास्क पहनना शुरू कर देते। यही मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। काश हमने इस चीजों का ध्यान में रखे, हम इस चीज को लेकर चले होते, तो शायद आज फिर ये लॉकडाउन ना आता। अगर हमने बराबर ये टाइमली प्रिकॉशंस जो थे, वो एडवाइजरी थी गवर्नमेंट की, उस पे हमने अगर कुछ ध्यान दिया होता। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है, जो आप कह रहे हो, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी देती है, जो हमारे बड़े बड़े लोग एडवाइजरी देते हैं। आप आज कल के डेट में देखो, बहुत सारे लोग जलसे जुलूसों में होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनों में होते हैं। अब गवर्नमेंट की भी यहाँ पे कुछ गलतफहमियां हैं, गलतियां हैं।
کیونکہ انہوں نے خود جب اس پہ دھیان نہیں دیا تو لوگ کیا کریں گے. لوگ تو جی جی آپ بہت جیسے ان کی میٹنگز ہوتی تھی گورنمنٹ کی, کہیں جو دفاتر تھے اس میں بھی کوئی اس چیز کا کوئی دھیان نہیں رکھا گیا. اور جہاں پہ کوئی بڑے بڑے عہدیدار یا منتری لوگ آتے تھے, کہیں اسٹوڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ ممبئی دیکھیے, آپ مہاراشٹر دیکھیے, آپ کلکتہ دیکھیے, ابھی ریسنٹ الیکشن چل رہا ہے وہاں پہ, تو لاکھوں کے حساب سے وغیرہ ہاں وہ چل رہی ہے. لاکھوں کے حساب سے اس میں لوگ امڑ پڑتے ہیں. اور یہاں کا بھی یہی حال ہے, ہمارے جموں کشمیر کا بھی یہی حال ہے. تو اب یہ تو ہونا ہی تھا, جب ہم نے اس چیز کو طرف دھیان ہی نہیں دیا تو یہ چیز ہونی تھی. ارشاد صاحب ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کوشچن پوچھتا ہوں آپ سے. یہ جو ریت وغیرہ کے ریٹس بڑھ گئے ہیں, ریت, اس کو اب آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ سر پہلے میں یہ پورا کروں, یہ جو ہمارے بچوں کا جو تھا وہ میں پورا کروں, اس کے بعد آپ کو میں اس پہ لاتا ہوں. دیکھیے سر, ہمارا کیا ہے کہ اب یہ لاک ڈاؤن پھر سے شروع آ گیا ہے, تو ہمارے بچے اب شاید پھر سے گھروں میں ہی سہم کر رہ جائیں گے. تو اس چیز کو لے کر ہمیں بہت بڑی پریشانی ہے. تو اللہ ہمارا رب آج بڑا دن ہے, یہ ہماری, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ دن دکھائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا کیا ہے کہ آج کل جو اس میں کیا ہے کہ میں نے بہت ایکسپیرینس اس میں لی ہے کہ بہت ہی تہ تک میں گیا ہوں. دیکھیے جہاں تک ہمارا یہ ہے کہ ایک جو چیزیں تھی, جو ہم اب لاک ڈاؤن میں کوئی کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں رہا, اور کسی کے پاس کوئی وہ جو مالی جو حالت تھی وہ خراب ہو گئی ہے, وہ خراب ہو گئی. جیسے ہمارا فروٹ کا تھا, ہمارا سیب کا تھا, وہ ہمیں خراب پڑے, ہمارے سبزیاں, ہمارے دان, ہمارے فصلیں سب خراب ہو گئی ہیں. اب دیکھیے ریسنٹ یہاں میں جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, لیکن آج کشمیر کی خصوصی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اب مارچ کا مہینہ آ گیا ہے. مارچ کے مہینے میں ہمیں بارشوں کا, یہ برسات کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں برسات ہوتی ہے. لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بعد میں ہوشیار ہوتے ہیں. جب کہیں جگہ نہ آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پہنچ جاتی ہے, بھائی آپ نے یہ تار لگائی تھی, اس کی وجہ سے یہ شارٹ سرکٹ وہاں وہ پول وغیرہ وہ ٹھیک نہیں کراتے ہیں. اسی طرح سے یہاں بارشوں کا بھی, جو ہماری یہاں برف پڑتی ہے, جب برف باری پڑتی ہے تو اس کے بعد گورنمنٹ کانشیس میں آ جاتی ہے کہ بھائی خرابی ہونے کے بعد گورنمنٹ آ جاتی ہے. اس طرح سے یہاں پہ آج میں نے نیشنل ہائی وے پہ بات کی تھی, کئی بڑے بڑے چینلوں میں بھی میں نے انٹرویوز دیے ہیں, اور آپ کی وساطت سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی آپ نے ایک دیکھا کہ بانال میں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ بیریکیٹس وغیرہ نہیں تھے وہاں پہ, تو ڈیو ٹو اس کی وجہ سے نیگلیجنس جو نیشنل ہائی وے کی تھی. تو اسی طرح سے یہاں پہ نیگلیجنس, اب وہ وہاں پہ بیریکیٹس لگا دیں گے, لیکن وہ جو چلے گئے وہ بیچارے واپس تو نہیں آئیں گے نا. اسی طرح سے یہاں پہ کشمیر کا جو حال ہے, موسمی حال, وہ بحال ہے اس وقت. یہاں پہ ہر علاقے میں بارشیں آئی ہیں, اور اس وجہ سے یہاں پہ باندھ نہیں بنائے گئے ہیں, یہاں پہ کنسٹرکشن جو دیواریں ہوتی ہے وہ نہیں بنائی گئے ہیں. دیکھیے ہمارا ریسنٹ آج ہمارے ایک علاقہ ہے, اس کو بڑی ویرا کہتے ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑا پرانا پل تھا, وہ خراب ہو گیا ہے. پرانا تھا وہ ایک سائڈ سے وہ چلا گیا. اب ٹریفک موومنٹ بند پڑی ہے, اور ڈی سی صاحب نے ہمارے ایڈوائزری دی ہے کہ وہ وہاں پہ ٹریفک نقل و حرکت بند رہ گئی ہے جب تک اس کا آلٹرنیٹ دیکھا جائے. تو اس کے بعد ہمارا جو گاؤں, مطلب میں ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی وہاں پہ سیلاب آ چکی ہے, آج بھی وہاں پہ سیلاب آئی ہوئی ہے. ایک روڈ دھس گیا ہے, سکول, مطلب جو سکول کی بلڈنگ ہے, دیکھیے اگر شاید ان بچوں کو 10 دن اور مل جاتے لاک ڈاؤن سے پہلے, لیکن اب کیا ہے کہ سیلاب نے ان کو لپیٹ میں لے لیا ہے. اس سکول کے سائنے میں پورا سیلاب ہے, جھیل میں وہ تبدیل ہو گیا اس کا پلے گراؤنڈ. اس طرح سے یہ گورنمنٹ بعد میں ہوشیار ہو جاتی ہے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں پہ خاص خیال رکھنا چاہیے. ایڈمنسٹریشن کو میں یہ ریکویسٹ کرنا ہوں کہ جہاں جس کسی سیکٹر میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے, چاہے ایگریکلچر میں پہلے ہی ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے, ان کے افسروں سے فیڈ بیک لینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سیکٹر ٹھیک کرے. اس کے بعد رورل ڈیولپمنٹ, ان کا بھی فیڈ بیک لیا جانا چاہیے, چاہے ہمارے جی سر, جی سر,
मैंने आज तक देखी नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या रोल है उनका। तो अब आ गई बारी इस चीज की। देखिए हमारे पास 2-4 असासे थे, वो हमसे छीन गए हैं, वो हमें चले गए। अब देखिए यहाँ पे हर रोज नए कानून लागू किए जा रहे हैं, कहा कुछ था करा कुछ और जा रहा है। देखिए पहले भी ये हुआ है कि बोला कि ये अब यूटी में जब तब्दील हो जाएगी, यहाँ पे सुकून होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे और चीजें सामने आ जाएंगी, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ पे मतलब इकोनॉमी ठीक होगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ये जो केएस कैडर जो वो थे उसको बड़ा कम कर दिया गया है। हमारे जो बैंक शेयर थे वो आधा कर दिया गया, आधा लद्दाख ले गए। हमारा और एक था कि यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं, और एक 2 कानून आए हैं हमारे लिए। जो अब देखिए गैस सिलेंडर आज के डेट में 1000 रुपया मिलता है, अब वो कह रहे थे उसमें सब्सिडी पे मिल रहा है। सब्सिडी कितने दे रहे, 200 रुपया की सब्सिडी, वो भी 3 महीने के बाद लोगों को अकाउंट में आ जाती है। तो गैस सिलेंडर पहुंच गया है 1000 रुपये में। अब उससे बेहतर वही रेट था जो 700 रुपया या 600 रुपया देते थे हम बिना सब्सिडी के, वो अच्छा था। इससे इन्होंने यहाँ से 1000 रुपया लिया, वहां से 200 रुपये लेते हैं 3 महीने के बाद। एक दूसरा ये है कि हमारा जो पेट्रोल का जो आ गया 100 रुपया लीटर आ गया, अब कोई गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस जो मेरी है, मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने आज का हाल देखा है, आज का हाल हर एक का बेहाल है। हर कोई मोटा दिखता है, क्लीन शेवर दिखता है, कपड़ा ठीक पहनता है, लेकिन अंदर से वो सूखा है, अंदर से वो खोखला हो गया है, अंदर से उसके अंदर परेशानियां हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से देखिए। अब और एक बात है, हमारा सबसे आज तो एक और ऑर्डर आ गया है जो आउटसाइड व्हीकल्स हैं, मान लो पीबी नंबर हरियाणा, वो उस पे भी मैं बात करूंगा, उस पे भी मैं बात करूंगा सर। एक और चीज आ गई है, जब सबसे हमारा गरीब जो हमसे पिछड़ा हो, बहुत सारे गरीब लोग जो इस चीज से वाबस्ता थे, जैसे कि हमारे ये मजदूर पेशा लोग जो रेत निकालते थे, यहाँ बाजरी निकालते थे, यहाँ पत्थरों का काम करते थे, और हमारे लिए वो काम आते थे। यहाँ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक साइड से ये कहते हैं कि हमने इंदिरा आवास योजना इसके तहत इतने घर बनाने हैं। अगर इन लोगों को इतने घर बनाने हैं तो इसका मटेरियल कहां से आएगा? जब कि एक गरीब का बंदा, एक गरीब बेचारा जिसको इंदिरा आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मिलता है, वो भी 3 किस्तों में। पहला उसको पलंथ में 50,000, उसके सेंटर काम में 50,000, उसके आफ्टर दैट जो उसके छत है उसके 50,000। सिर्फ एक कमरा, किचन और बाथरूम का 3 ही कमरे उनको मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें वो अगर जो पलंथ उसका अगर वो पलंथ बनाना चाहेगा तो मुझे लगता है कि 18,000 आजकल की डेट में 18,000 की रेत की गाड़ी आ रही है। और साथ में वो अगर उसको पत्थर लाने हो तो मुझे लगता है 10-30 हजार रुपए के पत्थर, तो 30-40 हजार रुपया उसमें चला गया। उसके बाद रेत का देखो, उसके बाद सीमेंट का देखो, उसके बाद ईंट का देखो, तो वो कैसे उस घर को नहीं बना सकते। उसके साथ हमारा मुंसलिक था, हमारा ट्रैक्टर वाला, जिसने लोन पे ट्रैक्टर निकाला। आज भी एग्रीकल्चर वाले ट्रैक्टर देते हैं विद ट्रॉली, ट्रैक्टर निकालता है बेचारा कोई बंदा 2 लाख रुपया जमा करके पूंजी वो ये, उसके बाद बैंक को चला जाता है, बैंक उसको फाइनेंस करता है, 7-8 लाख रुपये का ट्रैक्टर आता है, उसके बाद उसको किस्त भरनी होती है और लोन में वो डूब जाता है बेचारा, और यहाँ से उसको इंटरेस्ट में बढ़ जाता है, तो बेचारा वो क्या कर पाएगा? वो लोग भी परेशान हैं। तकरीबन लाखों लोग हमारे ट्रैक्टर वाले वो अभी बैठे हुए हैं। वो मजदूर लोग जो अभी रेत का काम करते हैं या बाजरी का काम करते हैं वो बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारा जो है टिपर वाले जिनकी 10-10, 20-20, 25-25 लाख की गाड़ियां हैं, उनके भी 10-15 लाख रुपए बैंक का बकाया है अभी, उसमें भी इंटरेस्ट देना होगा और वो किस्त नहीं पूरा कर पाते हैं। अब देखिए 1 साल से वो बैठे हैं, अब थोड़ा बहुत वो अब शायद उधर उधर करने लगे थे। तो उसके बाद एक और कानून आया ये जाल माइनिंग का, तो इससे पहले भी वो लोग रॉयल्टी वगैरह भर देते थे, ऐसे वो चोरी छुपे नहीं लेते थे। इसके लिए एक गवर्नमेंट का सेटअप था जो जूलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट था, वो उनका देखरेख में था, तो ऐसे कोई इलीगल नहीं करता था। उसके बाज़ाब्ता वो उसमें रॉयल्टी भरते थे। उसके बाद वो वहां से वो पत्थर की गाड़ी या बाजरी की गाड़ी या रेत की गाड़ी, बिल्कुल वो गवर्नमेंट की जो डिपॉजिट है उसमें वो पैसा भर देते थे रॉयल्टी, एज ए रॉयल्टी। तो एक उसके साथ हमारा ठेकेदार जो है,
जो कंस्ट्रक्टर का काम करते हैं वो भी बेचारे अब उनका कार्ड में उसमें उनको जीएसटी लगता है हर महीने, शायद उनको कुछ उसमें पैसे भरने होते हैं 10,000 या 20,000, मुझे नहीं पता है पूरा, लेकिन उनका भी है। अगर वो उनको हर साल कार्ड रिन्यू करना पड़ता है, उसमें 30-30 40,000 रुपया उनको भी लगता है। तो अब बेचारे वो भी लेबिलिटी में आ गए हैं, वो भी बैठे हैं। तो इस तरह से ये कानून जो उन्होंने लाए हैं एक के बाद एक। अब देखिए लैंड का वो भी मसला आया है। तो जहाँ जहाँ हमारे पहाड़ी लोग कई सालों से बस रहे थे, उनके ऊपर भी उंगलियां आप उठने लगी, उनको उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो उधर उधर इधर उधर एक के बाद एक कानून, जो आज एक चीज सोचता है कल कोई दूसरा चीज आता है। आज एक इस मुसीबत से निकलते हैं, उसके बाद तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो इंसान जो है, ये एक कॉमन इंसान जो यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा एक कॉमन मैन, जो हमारा जो लोग हैं यहाँ के, तो इन लोगों को आजकल के डेट में बहुत ही मुसीबतें, बहुत ही परेशानियां हैं। और एक बात, अब ये कानून खत्म हो गया, तीसरा कानून आया, उसके बाद एक आया, हमारे यहाँ डेली वेजर कैजुअल लेबर 60,000 लोग थे, उनको ये कहा गया कि आपको पूरा परमानेंट कराया जाएगा, आपकी जो रेगुलेशन पॉलिसी वो की जाएगी। हमारा जो एनवाईसी, हमारे जो टेक्निकल एजुकेशन, जो हमारे टेक्निकल ITIs जो हमारे उसमें ट्रेंड लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं एज ए ट्यूटर, एज ए इंस्ट्रक्टर, उनका क्या तनख्वाह है? 4,000 रुपया तनख्वाह देते हैं उनको। उनसे भी बात की गई थी कि वो हमारे इंजीनियरों को बनाते हैं, वो हमारे उन आर्किटेक्ट को बनाते हैं, जो हमारा घर को बनाते हैं। देखिए आप एक मिसाल में बताऊंगा, हमारे लिए एक तबका है, मतलब जो हमारा वो घर बनाता है, उसका खुद का घर नहीं होता है। जैसे मतलब मैं तुर्खान की बात करूंगा, अगर वो हमारा घर बनाता है लेकिन खुद का घर उसको नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कुर्बानियां देकर, लेकिन खुद के पास उनका कुछ नहीं होता है। तो एक डॉक्टर, मतलब मिसाल मानो, तो वो इंसान की जिंदगी को कशमकश करके अगर कोई बीमारी में मुब्तला होता है तो उसको जी जान के उसको बचाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जितने भी तबके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या दूसरे सेक्टर के हो, सब तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अब और एक कानून आया है, देखिए आजकल के डेट में नया कानून आया है जो आरटीओ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट की ओर से है, जो बाहर से जो हमारी रजिस्टर बाहर से गाड़ियां लाई हुई हैं, बाहर वाली नंबर की गाड़ियां जितनी भी हैं, तो यहाँ के लोगों ने लाखों के हिसाब से वो गाड़ियां ली हैं। अब उनको ये कह रहे हैं कि आप उनको रजिस्टर्ड करवाइए, इनकी एनओसीज वहां से लाइए, और उन्होंने बाज़ाब्ता उसमें वन टाइम टोकन भी भरा हुआ तो वहां से ही उन्होंने दिल्ली या बाकी जगहों से जहां से गाड़ियां लाई हैं, बाज़ाब्ता उन्होंने वहां से उनमें फीस भी भरा है, रजिस्ट्रेशन फीस, बाकी जो भी है उनकी जो प्रॉपर फॉर्मेलिटी थी वो वहां पूरी करके उन्होंने वो गाड़ियां लाई है। अब यहाँ की गवर्नमेंट उनसे नए सिरे से कह रहे हैं नहीं जी आप इनमें और वो कर दीजिएगा। तो अब ये कैसे हो सके? और अब क्या है कि अब अचानक से इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जहां भी गाड़ी मिलेगी उसको पकड़ो, उसके कागजात देखो। उनके पास कैसे कागजात होंगे? वहां की एनओसी कैसे होगी? किस तरह की एनओसी होगी? कम से कम इनको एक सेटअप बनाना था, फिर इनको लोगों को अवेयरनेस देनी थी कि 1 महीना या 1.5 महीने या 15 दिन देने थे, ताकि वो अपनी एनओसी लाके और उस चीज को पे फिर वो आगे प्रोसेस करते। लेकिन अचानक से ये क्या कहते हैं, आपकी एनओसी भाई कहाँ है, आप एनओसी ले आओ और रजिस्टर्ड करो गाड़ी को, और आपका फीस भी भरना है। अगर उन्होंने वहां फीस दिया है तो यहाँ क्यों देना है? उसी फीस को अगर कंसिडर करते तो वो शायद बेहतर रहता। और दूसरा, ये अचानक से जो उन्होंने कर दिया है ये भी गलत बात है। तो इस तरह से मुझे लगता है ये लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है यहाँ की गवर्नमेंट। इरशाद साहब, एक और चीज मैं बताता हूँ, कोविड-19 चल रहा था, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, कोई कुछ नहीं चल रहा था, इन्होंने फास्टैग मैंडेटरी कर दिया। जी सर फास्टैग मैंडेटरी कर दिया, गाड़ी नहीं चल रही थी, फास्टैग मैंडेटरी कर दिया, और फास्टैग नहीं होगा तो आपको फाइन होगा। जहां कहीं टोल है ही नहीं, वहां पे भी इनको फास्टैग लगाना है। जी सर, अब देखिए तो इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा इशू। देखिए अगर कोई बेचारा मान लो साल में एक बार किसी ने जी सर से श्रीनगर का सफर करना है, उसको फास्टैग की क्या जरूरत है? या जिस दिन उसने जाना होगा उसी दिन लगाएगा। तो
फास्ट जी सर। टैग नहीं होगा आपकी गाड़ी में तो आपको फाइन देना है। ये भी तो एक मसला है। मसले तो बहुत सारे हैं। आप यही हाँ बोले बोले, आप कुछ बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं बीच में फास्ट टैग भी जो वॉइस क्रैक की आ रही है। नासरी के पास में, नासरी टनल के पास में जो एक टूल प्लाजा आता है, शायद वो पीछे है आगे। जी वहां पे इस फास्ट ट्रैक को लेकर एक बहुत बड़ा घुमसान लड़ाई हुई थी। उसमें वो उसको रोक रहे थे। उसने बोला मेरे को कहाँ से फास्ट ट्रैक जरूरत है, मैं यहाँ का रहने वाला, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों मुझे ये कर रहे हो। तो उसके बाद उनके साथ हाथापाई हुई और बाद में पुलिस इन्वॉल्वमेंट हुई और लड़ाई हुई। तो इस तरह से वहां पे कई बार लड़ाइयां हुई है इस फास्ट ट्रैक को लेकर, और वहां के लोगों ने भी गवर्नमेंट तक ये आवाज पहुंचाई पहले से कि इस तरह का कानून जो हमें मंजूर नहीं है और ये हमारे साथ नाइंसाफियां है। तो अब की बार आप देखिए कि एक रिसेंट मेरे पास भी एक बंदा आया था, उसको अच्छा सा वॉइस इज क्रैकी कि भाई ये आपके फास्ट ट्रैक क्यों नहीं है। तो तकरीबन 1700-1800 रुपये उससे ले गए कि आपके पास फास्ट ट्रैक नहीं है। 500-600 रुपये पहले लिया, उसके दूसरे टोल प्लाजा पे 400 रुपये लिए, उसके बाद 300 काजीकुंड के पास में लिए। तो इस तरह से ये कोई 10-1500 रुपये बन जाता है। तो इस तरह से ये भी गलत है। तो जी सर। नेटवर्क प्रॉब्लम, वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर्ली। जी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ, बोले आप। गवर्नमेंट, मेरी आपके चैनल से गवर्नमेंट से पुरजोर में इल्तिमास करता हूं। मैं ये हम पहले 1989 से हम लोग फंसे हुए हैं। हम इरशाद साहब, कैन यू डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट इन अगेन? दो मुल्कों ने इनको झुझुड़ कर रख दिया है। दो मुल्क आपस में लड़ते हैं, भुगतना हमें और जम्मू और कश्मीर को पड़ता है। आप रिसेंट देखिए, हमारी तालीम चीजें जो हमारे जो जरूरियात जिंदगी के हैं वो हमारा बर्बाद और तबाह हो चुका है, हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है खास। जी सर, शुक्रिया। इरशाद साहब प्लीज डिस्कनेक्ट। नहीं आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नेटवर्क। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, आप डिस्कनेक्ट थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, जी सर, एंड कनेक्ट अगेन। जी सर, करिए सर, डिस्कनेक्ट आगे करना चाहते हैं। जी सर, जी सर। चलो आप आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सर कि हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जैसे आप और मैं हैं, जैसे आम सतह के जो लोग हैं, हमने बहुत कुछ झेला है, हमने बहुत कुछ देखा है, हमें बहुत कुछ मतलब ये सहना पड़ा। दो मुल्कों की लड़ाई भुगतना जम्मू और कश्मीर को पड़ता है। हमारी जो इकोनॉमी, हमारा बिजनेस सेटअप, हमारा रोजगार, हर एक चीज में हमारी जिंदगानियां, हमारे हर तरह की परेशानियां हुई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की ओर से भी परेशानियां हमारे ऊपर आई हैं, जैसे कोविड वगैरह और भी दीगर चीजें। हमारे पास कोई ऐसी चीज है नहीं, जैसे कि हार्ट। यहाँ पे आपने देखा है कि रिसेंट हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जिनका हार्ट फेलियर हुआ। इस तरह का कोई अस्पताल यहाँ पे है नहीं। कार्डियोलॉजी का, हमारा कैंसर का है, तो उसमें बहुत सारे हमारे लोग बेचारे मुतासिर हुए हैं, उनको हमें बाहर लेना पड़ता है, लाखों के हिसाब से हमारा पैसा खर्च होता है। इस तरह के हमारे हेल्थ सेक्टर का भी कोई ठीक सेटअप नहीं है यहाँ पे। दूसरे और भी बाहर डिग्रियां करनी पड़ती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियां और भी कई यूनिवर्सिटियों से हम
तालीम हासिल करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा जो है कि MBBS के लिए फॉरेन कंट्री में हमें जाना पड़ता है ताकि वहाँ पे हम डिग्रियां हासिल करते हैं। यहाँ के लिए हमारे पास इस तरह का कोई नहीं है। हमारे बच्चों में टैलेंट है, उनमें बहुत ही गट्स है इस चीज को लेकर, वो अचीवर हैं, वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि हमारे साथ जो मुख्तलिफ तरीके हैं उस वजह से हम परेशान हैं। तो साथ साथ हमारा अब यह है कि कोविड भी आया है, दूसरी चीजें भी। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो थोड़ा डिफरेंट स्टेट इसलिए है कि 1980 से हम परेशान हैं। और गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए बाकी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से, जैसे तमिलनाडु, यूपी, बाकी बिहार वगैरह जो भी है, गुजरात, इनको इस स्टेट को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर ये सब्सिडी लाए जाए, अगर यहाँ पे दूसरी चीजें मतलब ये जैसे इंडस्ट्रीज बाकी चीजें, और इस स्टेट का मुझे लगता है खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर इन्होंने रेट बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल की, इनको ये चाहिए था कि कश्मीर को छोड़ के बाकी डिस्ट्रिक्ट स्टेटों में कर सकते थे ये, क्योंकि इनको पता है कि कश्मीर किस तरह से गुजर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, तो कैसे हालात हैं। अब यूटी के बाद उन्होंने कहा था हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट कर रहे हैं, हमारे दिलों को तोड़ रहे हैं। तो हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, अब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपका ये सिस्टम है, इसको देख रेख के आप दूसरे तरीके से। मेरी एक ही गुजारिश है, सबसे पहले जब हम जिंदा हैं जो हमारे बच्चे हैं उनको इनकरेज की जाए, उनके लिए कोई खास इकदाम की जाए, उनके लिए कुछ पॉलिसियां लाई जाए, उनके लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया जाए। हमारे पास है, गरीब के पास नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने क्यों नहीं है, तो बच्चों को क्या किस तरह से वो पढ़ाएंगे। अब अगर लॉकडाउन हो गया है, नेचुरली उनको ट्यूशन सेंटर छोड़ना होगा, बच्चों को किसी ट्यूटर के पास छोड़ना होगा, वो एक्स्ट्रा फीस लेंगे, उस तरह से ये चीजें हैं। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से पूरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे रेत बाजरी जो इस चीज से वाबस्ता लोग हैं, तो ये कानून वापस लिया जाए ताकि इन लोगों को भी कमाने का मौका दिया जाए। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, जिनका अभी बहुत नुकसान हुआ है बनस्बत की बाकी स्टेटों से, उनके लिए कुछ मुआवजे का रखा जाए और उनकी तालीम का भी खास ख्याल रखा जाए और उनकी तालीम का सेटअप जो है उसको ठीक कराया जाए। तीसरा ये है कि जो हमारी बाकी सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाए, जो हमारे दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर हैं या PDD। और एक बात है जी सर, मैं एक आपकी चैनल से एक लास्ट बात करना चाहूंगा। मेरी गुजारिश रहेगी यूटी गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर से कि खुदारा हमें इतना मत तरसाओ, हमें इतना मत परेशान करो। हमारे लोगों को बहुत ही परेशानियां हैं, हमारे लोग गमजदा हुए हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने पूरा टैकल कसा है। हर घर में जाते हैं, 10-15 लोग जाते हैं, जल शक्ति के डिपार्टमेंट जैसे पानी का फीस मांगने, फीस इतने, एक घर को 10,000 रुपया 4,000 और डिस्कनेक्ट करते हैं पाइपलाइन को। तीसरा यह है कि अब इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं दिखी नहीं इन सर्दियों में। कश्मीर पूरा अंधेरे में, गुप अंधेरे में था, 5 मिनट बिजली आती थी, 2 घंटे गायब थी। इन्होंने कहा था, इन्होंने अब क्या किया है कि उन्होंने भी उन पे नकेल कस दिए हैं, और जिन घर में एक घर के पास 40,000 रुपया और 10,000 रुपया फीस बकाया पड़ी है, और उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जी सर हाँ लास्ट वर्ड। तो मेरी LG साहब से गुजारिश ये है, जो हमारे PDD डिपार्टमेंट या हमारा जो जल शक्ति जैसे पानी का डिपार्टमेंट जो है, PHE वगैरह, तो उनको क्या है कि अब वो फीस के लिए आ रहे हैं घरों में, कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। अचानक से उनको पाइपलाइनें कट कर देते हैं,
जो इलेक्ट्रिशियन लाइन जो है वो कट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन सेटअप इनका ठीक नहीं है। कहीं आपको पोल नहीं दिखेंगे, कहीं आपको तारे नहीं दिखेंगे, कहीं ट्रांसफार्मर ठीक नहीं दिखेगा, कहीं पावर सेक्टर भी ठीक कहीं नहीं है। यहाँ पे पानी का तो चलता है थोड़ा बहुत, तो हमारे खुद के वसाइल हैं, उनसे हम पानी ले जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह का करम है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने टेकल कसा है कि भाई एक टाइम फीस दे दीजिए। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इनके लिए रिलैक्सेशन हो। एक साथ अगर आप कंपनसेशन पे जिसका एक ही बारी वंस टाइम अगर 5-5 हजार रुपया अभी है, ये जो फीसें हैं वो सारी इस वक्त वसूल कर रहे हैं, तो उस पर ये थोड़ी सी नजरसानी करके उनको थोड़ा सा कंसेट करके वो अगर वसूल जाए कंसेशन करके। हाँ जी जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ इसमें रिलैक्सेशन दी जाए, बिजली फीस में रिलैक्सेशन दी जाए, पानी की फीस में रिलैक्सेशन दी जाए। हमारे इस ट्रांसपोर्ट का जो इन्होंने लाया है इसमें तकरीबन 2 महीने और दिया जाए। हमारा जो ये है एजुकेशन सेक्टर, इसको ठीक कराया जाए। हमारे जो अभी ये नुकसानात हुए हैं, जो बारिशों से हमारे नुकसान हुए हैं, तो उसकी भरपाई की जाए। एक टीम तश्कील दी जाए, और जो बेचारे वो फार्मर्स हैं जिन्होंने अभी बीज भी बोया था, अब मार्च का महीना आया था, वो अब खत्म हो चुका उनके लिए। अब रोड कनेक्टिविटी को ठीक करना है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी जब होती है तो सड़कों पे जो बर्फ होती है ना, उससे हमारे मैकडम खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप ऐसे कहीं ऐसे रोड देखोगे जम्मू कश्मीर में, हर मुझे लगता है तकरीबन 90% जो रोड होंगे वो अभी खस्ता हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि, और जो आने वाला टाइम है, जो लॉकडाउन आने वाला है, लास्ट बट वन मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आने वाला टाइम है, यस, जो आने वाला टाइम है, अच्छा साहब का कहना यही है कि आने वाला टाइम बहुत खराब आने वाला है, और मान लो परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। जिस हिसाब से हमने पीछे भी देखा कि बहुत बुरे हालात थे, तो आने वाला टाइम हमारा जो है कि आने वाले टाइम में क्या व्यवस्था की जाए, से लॉकडाउन हो गई इरशाद साहब ने बहुत अच्छी बातें करी। अभी तक इन्होंने बहुत सारी बातें करी। इन्होंने रेत के मामले में बात करी कि रेत जो हमें पुराने जो नया कानून लाया है उसकी वजह से रेत के रेट्स बढ़ गए और आसमान छू गए। दूसरा, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बिजली के खंभे नहीं हैं तो बिजली के बिल जा रहे हैं, बिजली में भी कंसेट किया जाए जो भी बिल वगैरह है। तो आखिरी 2-4 बातें कोशिश करेंगे कि अगर इरशाद साहब लाइव आ जाते हैं तो आखिरी हम 2-4 बातें कर लेते हैं इनके साथ। वही कह रहे हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट भी अब एक्टिव हो गया है, वो भी शुरू कर दिया है, और वो भी कंसेट करे, थोड़ा बहुत कंसेट करे ताकि एट अ टाइम बर्डन ना बढ़े। जी सर, आखिर में आप बता दीजिए कि अब अल्टीमेटली जो आखिर वर्ड्स हैं आपके मेरे बस इतना ही है सर, क्योंकि ये हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रहा है हमारे से, तो मैं ये उनका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूं। लेकिन एक चीज को लेकर कि मैं कहता हूं कि हमारे जो कानून इन्होंने जो लाए, रेती बाजरी और इसका जो कानून जालजान माइनिंग का जो था, तो उसको कलअदम किया जाए, क्योंकि इन्होंने बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लाया है, यहाँ के गरीब आवाम को शब खून मारा है वो, ठीक है। तो इनको ट्रैक्टर वालों को बचाना है, टिपर वालों को बचाना है, बाकी दीगर लोगों को बचाना है जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। एक तो इस कानून को खत्म किया जाए।
تو یہ جی جو کنٹریکٹ انہوں نے دیا ہے اس کو منسوخ کیا جائے ایک. دوسرا یہ کہ جو ہماری پانی بجلی کا فیس جو ہے اس میں ریلیکسیشن دی جائے. جی جی پانی بجلی پہ ریلیکسیشن دیا جائے اور جو قانون لایا ہوا ہے ریت کھنن وغیرہ کا جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو واپس لیا جائے. تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو. جی سر یہ اب یہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اس لیے آپ کلوز کیجئے سر کیونکہ میں اب یہی ریکویسٹ ہے یہ پانی بجلی کا. دوسرا یہ جو ٹھیکے دیے انہوں نے اس کو ریلیکسیشن دی جائے تاکہ ایک دو مہینے اور دیے جائے تاکہ ہماری انڈسٹریز وہاں سے آ جائیں تاکہ وہ بیچارے ڈپریشن میں نہ آئیں. اور تیسرا جو سب سے اہم بات ہے اب لاک ڈاؤن شاید ہونے جا رہا ہے. اس گورنمنٹ کو اس کے لیے جو بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ان پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کس کو کیا پرابلم ہے. اور تیسرا ہمارے جو گیس ہے وہ ہمیں فری کیا جائے. اور دوسرا پریپیئر ہونا چاہیے پہلے ہی. پریپریشن اس کے لیے پریپریشن آج سے ہی ہونی چاہیے. پریپریشنز پہلے ہی کر کے رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے ویسا ہو. ویسے تو ایسا نہیں ہوگا مے بی ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھی ہے. تو اس کے لیے پریپریشنز پہلے سے ہی ہوں کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. تو بس ابھی ہم اس لائیو سیشن کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ابھی لاسٹ کمنٹ میں ارشاد صاحب سے لے لیتا ہوں تو اس کے بعد ارشاد صاحب لاسٹ کمنٹ بتا دیجیے تو آج کا لائیو ختم کر لیتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے اور جو ہمارا جو کووڈ جو بڑھ رہا ہے تو اس میں آپ جو پریکاشنز ہے گورنمنٹ کی اور سے جیسے ماسک لگانا باقی چیزیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ آج اللہ سے دعا کریں کہ آج ہمارا بڑا دن ہے تو اللہ سے ہم نجات مانگیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور سب اس جو ہمارے جموں اینڈ کشمیر کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو خوش رکھیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہی لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو یہ چھوٹی سی ادنا سی میسیج وہ آگے تک پہنچ جائے اور ان اعلیٰ حکام تک پہنچ جائے جو اس مسئلے کا سمادھان. جیسے یہ آپ ہی کی پرابلم ہے میری بھی پرابلم ہے پانی بجلی سڑک جو بھی ہے جو بھی ہم نے سب باتیں کی ہیں تو اس حساب سے کہ اگر آپ بھی اس کو آگے چلانا چاہتے ہو تاکہ ان تک یہ پہنچ جائے اور ہماری رہسانی. لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرا شو ڈیلی آتا ہے وہ ڈیلی لائیو کو آپ روز دیکھیں. تو دوبارہ سے جو ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے ارشاد صاحب کو بس یہ فائنلی شکریہ سر شکریہ بہت بہت شکریہ. ٹائم نکال کے آج شب برات کا ٹائم ہے. آپ بھی شب کریں گے انشاءاللہ میں بھی شب کروں گا. بالکل. آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی باتیں کری بہت ساری باتیں کری اور حالات کشمیر کے پورے بتائے کہ آفٹر ایبروگیشن کیسے حالات رہے اور ٹل ڈیٹ ابھی کوئی حالات میں کوئی سدھار نہیں آیا. ایون حالات بہتر ہونے کے بجائے تھوڑے بگڑ ہی گئے ہیں. نئے قانون آ رہے ہیں نیا کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یوٹی اب بن گئی ہے. ہم ڈی گریڈ ہو گئے ہیں. مان لو پہلے پرنسلی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی. مان لو ایک قسم کا کنٹری ہوا کرتا تھا اس سے پھر اسٹیٹ بن گیا. اسٹیٹ سے پھر یوٹی بن گیا. اب یوٹی کے نیچے پتہ نہیں کون سا پروفائل ہوتا ہے اسٹیٹس کا تو وہ کہیں نہ بن جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کو واپس دیا جائے. آمین. اور خاص کر آج کے ڈیٹ میں لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. شب جو برات ہے آج کے ڈیٹ کی تو ان کی میں آپ سب کو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اللہ آپ کو تمام دنیا کی خوشیاں نصیب کریں اور آپ کے بچوں کا
फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो और आपका सेहत ठीक रहे। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे एमएस कोड से हमें नजात दें। तो मास्क आप भी पहने हमारे लिए दुआ करें। और हाइजीन का ख्याल रखें, हाथ धोएं और जी सर, बिल्कुल वो बेस्ट, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो तो ऐसे बिला वजह बाहर ना निकलें। जो काम वाले हैं तो काम के सिलसिले में निकलना है तो निकलें, अदरवाइज जी ऐसे ना निकलें। अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। तो इसी के साथ आज का लाइव हम ख़त्म कर लेते हैं। ये थे इरशाद अहमद वानी, जो कि हमारे कुपवारा से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुपवारा से जुड़े थे। तो इनके साथ हमने आज ये सेकंड टाइम हम लाइव आए हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे टाइम दिया और क्रिएटर टीवी को टाइम दिया और हमने बहुत बातें करी एप्लीकेशन से लेके टिल डेट के आज तक। कल यूं ही आर्टिकल ख़त्म हुआ था तो हमने सोचा था कि सोने की सड़कें बनेंगी, तो मगर अभी सड़कें नहीं दिख रही हैं, तो खड्डे दिख रहे हैं। और हाईवे के हालात तो वैसे हैं कि सारी दुनिया जानती है, उसमें अब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईवे वाले भी परेशान हो गए होंगे कि ये क्या रोज़ हाईवे पे बात करता है, बट हाईवे के हालात वैसे हैं। अगर आपने जम्मू से श्रीनगर जाना है, 5 दिन का खाना आप साथ ले किसी टोकरी में, तो तब कहीं आप जम्मू से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। वैसे हालात बना दिए गए हैं कि कटिंग उस तरह की हुई है। इनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और अनपढ़ इंजीनियर्स को सबलेट किए गए हैं ठेके। तो उन्होंने हाईवे को तबाह और बर्बाद कर दिया। और जो भी ट्रैवलर है वो सफरर है। मान लो अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो ऊपर से पत्थर आ जाएगा तो मैं गुड़ुम, कोई पता नहीं कि पहुँचूँगा आगे या नहीं पहुँचूँगा। तो वही वो इरशाद साहब भी रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया है, तो ये खुद बता सकते हैं कि इसके हालात बड़े बुरे हालात हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट उनसे भी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, कि आप अगर 15 दिन या 1 महीना बंद करें रोड, मगर रोड को क्लियर करें एक ही बार वन गो में, तो ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ये रोज का एक जुम्मे के दिन ये बंद कर लेते हैं, सारी पहाड़ियाँ खोद के नीचे ले आते हैं, तो फिर बाद में पूरा हफ्ता जाम रहता है। तो 1 महीना अगर इन्हें बंद करना तो 1 महीना बंद करो, एक ही वन गो में काम कर लो। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज, अगर टेंडर फॉरेन कंपनी के पास होता तो उन्होंने कब का ये रोड बना के हैंड ओवर भी कर दिया होता। और उन्होंने इनकी सर्वे के हिसाब से नहीं चलना था, उन्होंने नीचे से फ्लाईओवर बना के तो जाना था। मैंने जम्मू में आके बहुत बड़ी इसमें आवाज उठाई थी, और मैं भी यही आपकी बात से मैं सहमत हूं। जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी कहा था, काश आप इसको 15 दिन के लिए बंद। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये गवर्नमेंट बाद में होशियार हो जाती है, जब खतरा लाख होता है और उसके बाद एक्सीडेंटल हो जाते हैं तब गवर्नमेंट अवेयर हो जाती है। तो बनिस्बत अगर ये पहले से अवेयर होती, हाँ पहले से अवेयर होते तो 15 दिन या महीना लगे, एक टैड दे दें, टर्न अराउंड टाइम होता है, टैड दे दें कि इतने टाइम में हम आपका ये ख़त्म कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे, हाईवे को हम कंप्लीट कर देंगे। तो उतने देर तक बंद कर दें, हम कोई दूसरे रूट से चलवाएंगे। या मुगल रोड है, मुगल रोड अब खुलने वाला है, मुगल रोड से चलेंगी गाड़ियाँ, तो इसको बंद करके 1 महीना काम करें और 1 महीने के अंदर हमें हैंड ओवर कर दें हाईवे बना के। नहीं तो ये रोड का मरना हुआ हाईवे पे चलना, खासकर रामबन से लेके बनहाल तक। अब तो चिनैनी भी स्टार्ट हो गया। अब तो चिनैनी में जैसे ऊपर से मिट्योर्स आते हैं वैसा हाल है, बड़े पहाड़ियाँ चट्टाने आ जाती हैं नीचे खिसक के। ये तो रिस्क है, बहुत ही बड़ा रिस्क है, लाइफ के साथ रिस्क है। मैं चाहता हूँ कि इस पे भी थोड़ा सा नजरसानी करें, जो अथॉरिटीज देख रही हैं या उन तक के पहुँचे, वो भी देखें लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
ڈیلی لائیو شو ہوتا ہے. اس کو جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں. یوٹیوب میں بھی چینل ہے میرا کریٹر ٹی وی گلوبل, اس کو بھی سبسکرائب کریں. اور انسٹاگرام میں بھی ہے, ٹویٹر ہینڈل بھی ہے میرا یہ کریٹر ٹی وی گلوبل. وہ میری ویب سائٹ ہے کریٹر ٹی وی گلوبل, وہ کلک کریں, وہاں پہ بھی دیکھیں. وہاں پہ بلاگس بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج ہم یہ لائیو اپنا ختم کر لیتے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ہستی